और अदानी की संपत्ति ने जा बांग्लादेश को यहाँ रखा हुआ। Samajwadi Party MP Avdesh Prasad expressed strong support for the farmers' protest, stating that their demands are justified. He emphasized that farmers are the soul of India and the country's prosperity is tied to their well-being. Prasad further pointed out that India as an agrarian nation cannot thrive unless its farmers are prosperous, underscoring the importance of addressing their concerns for national development. I have nothing to say. I have nothing to say a single word regarding this matter. I have nothing to say. It is his personal matter. I have no word to use about that. I am not aware of. सर किसान जो हैं वो दिल्ली चलो दिल्ली कूच कर रहे हैं, एमएसपी की बात मांग कर रहे हैं, तमाम तरीके की मांगे जो हैं वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? किसानों की मांग बहुत जायज है, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है। हमारा देश किसानों का देश है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे लायक प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने का दावा ठोकते हैं, लेकिन जब तक इस देश का किसान, जिसकी आबादी 80% है, खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। अगर हिंदुस्तान को खुशहाल करना है तो हिंदुस्तान के किसानों को खुशहाल करना पड़ेगा। लेकिन आज अफसोस है कि, और उन्होंने ये बताया, खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से गया है। अफसोस है जिस खेत की बात माननीय चौधरी साहब करते थे, आज उस खेतों पर सांडों का राज है। सांड खेतों को चरते हैं और किसानों की जान भी लेते हैं। तो किसान अपनी जायज मांगों को लेकर अगर केंद्र सरकार के पास आना चाहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए और उसकी बात सुन करके उसके साथ न्याय और इंसाफ करना चाहिए। अगर नहीं करते तो समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी हमारे हैं अखिलेश जी, हमेशा किसानों की बात सुनते थे। और उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो मुफ्त सिंचाई किया था। मुफ्त सिंचाई उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने किसानों के हित के लिए मुफ्त सिंचाई, चाहे ट्यूबवेल से, सरकारी ट्यूबवेल से और चाहे नहरों से सिंचाई, कितना भी पानी डाला जाए एक पैसा नहीं पड़ता था। ये हमारी नेता माननीय अखिलेश जी ने, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और दुनिया में नहीं है, ये व्यवस्था किया था। I have nothing to say. I have nothing to say. Union Minister Sarbananda Sonowal criticized Congress for its alleged 60 years of misgovernance, which according to him led to issues like infiltration and insurgency in the northeast region. He contrasted this with the efforts of Prime Minister Narendra Modi, whose policies Sonowal claimed have brought peace, progress and prosperity to the region over the past decade. Sonowal highlighted the significant transformation of the northeast under the current government, emphasizing improved security and development in the area. নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সুশাসন ব্যৱস্থা, তেখেতৰ সততা নিষ্ঠা আৰু তেখেতে নিজেও এতিয়ালৈকে 60 বাৰতকৈ অধিক তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীক আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়াৰ ফলত এতিয়ালৈকে প্ৰায় আপোনালোকে যদি হিচাপ কৰে 800কৈ অধিক বাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ভ্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি ৰাইজে যি আশা আকাংক্ষা তেখেতসকলৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিছে সেইবিলাক পূৰণ কৰাৰ বাবে বিভাগীয় যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে। গতিকে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেলপথে হওক, বায়ুপথে হওক, আজি ৰাস্তাই হওক বা জলপথে হওক, প্ৰতিটো মোড অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনক আজি যেনেধৰণে সক্ৰিয় কৰি তোলা হৈছে, সুচল কৰি তোলা হৈছে, তাৰ বাবে আজি প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে। গতিকে মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এগৰাকী বাসিন্দা হিচাপে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৈ
আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আজি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যিটো তেখেতৰ সপোন, এই সপোন দিঠকত পৰিণত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতায়ো আজি আন্তৰিকতাৰে এই যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে। তাৰ ফলত আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ এটা উল্লেখযোগ্য এলেকা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইবাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি তেখেতৰ যিখিনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সেইবাবে তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে আৰু থাকে। कहे ना तो देश के लोग, हमने कहा आज हमने दिखा दिया पूरी दुनिया को भी पीसफुली है। तो इस तरह से दिल्ली में कोई जगह दे देते, जंतर मंतर, रामलीला, तो वहां बैठ के अपनी बात रखते। नहीं, देखिए ऐसा लगता है भी जो विश्व व्यापार संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, जो कारपोरेट की पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक्स मॉडल पूरे दुनिया में ये लागू कर रहे हैं, भी छोटे किसान को, मझोले किसान को खेती से बाहर करना है, खेती मंडी जो बड़े व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, उनको देनी है। इसी फैसले को वो लागू भारत में भी कर रहे हैं। तो किसान पहले मंडी छीनने से पहले, जमीनें से बाहर निकलने से पहले एक बार पूरा तन मन धन से अपना आंदोलन करके प्रयास करना चाहता भी हम अपने आप को बचा लें, सेव कर लें। इस देश में मुलाजमों को जो सरकारी जनतक अदारे तो वो तो छीन लिए गए, बेरोजगारी अंत की है, यहाँ हमारी रेल जाती रही, दूरसंचार के क्षेत्र जाते रहे, कोयला खनन क्षेत्र हमसे छीन लिया, हमारा अन्य जो क्षेत्र है उसके ऊपर अदानी अंबानी जी का कब्जा हो गया, खेती क्षेत्र बचा है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा नहीं है। हमें लगता है अभी हम इसलिए भी हम पीसफुली और लोगों को, ये देश के किसान मजदूर को आह्वान करेंगे, जहां जहां भी हमने पंजाब भाजपा का, जहां भी भाजपा जाती उनका विरोध करने का भी निर्णय लिया है। लोग विरोध करें, प्रेशर बनाएं, मोर्चों में आए और हमारा प्रेशर बढ़ेगा और हम आशा रखते हैं भी सरकार बातचीत का रास्ता खोले। तो कहते हैं हम तो देखिए मोबाइल खुले हुए, कल भी बोला था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी, सीएम अगर पंजाब के बीच में मध्यस्थता करते उनकी चिट्ठी, या हरियाणा का सीएम बात करता उनकी चिट्ठी आनी चाहिए। हम तो बिल्कुल आठों बातचीत के लिए। That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English. Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. BJP MP Anurag Thakur responded to the incident of cash being recovered from the Rajya Sabha seat allocated to Congress MP Abhishek Manu Singhvi, emphasizing that the statement made by the Rajya Sabha chairman indicates the seriousness of the matter. Thakur called for the truth to come out regarding the incident and questioned why the opposition was avoiding public issues. He accused the opposition of preventing Parliament from functioning, suggesting that their actions were aimed at distracting from important discussions and obstructing the legislative process. पहले प्रियंका जी और राहुल जी ने बड़ी बड़ी सभाएं करके कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। आज हालत ये है कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इंटर्न्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, और जो 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था उसमें 5 लाख तो छोड़िए,
लोगों को आज सैलरी और पेंशन इसके भी लाले पड़े हुए हैं और डीए का भत्ता लेने के लिए हर दरवाजे पे खटखटाना पड़ रहा है और ये खटाखट मॉडल बिल्कुल खटारा हो गया। हालत ये है कि जहां एक और चांद तारे लाने की बात करते थे, वहां आज युवा सड़कों पर उतरा है। सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स विरोध में सड़कों पर है, उनको पेंशन मिल नहीं पा रही और राज्य 97,000 करोड़ के कर्जे में है। छोटा सा हिमाचल प्रदेश 97,000 करोड़ के कर्जे में है। न किसी को सैलरी पेंशन के लाले पड़ गए और यहां तक कि अब पेंशन के लाले पड़ गए और यहां तक कि अब जेब से और पैसा निकाल के देना पड़ रहा है। जहां तक गोबर खरीदने की बात थी, गुड़ गोबर इन्होंने कर दिया है। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, किसी से नहीं खरीदा। एक भी किसान से, दूध पालक से दूध ऐसे थे 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध वो नहीं खरीदा है। और हालत ये है कि आज हिमाचल कर्जे में डूब चुका है। आज हिमाचल में सुर्खियां बना हुआ है। चुनावों से पहले प्रियंका जी और राहुल जी ने बड़ी बड़ी सभाएं करके कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। आज हालत ये है कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इंटर्न्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और जो 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था उसमें 5 लाख तो छोड़िए, लोगों को आज सैलरी और पेंशन इसके भी लाले पड़े हुए हैं और डीए का भत्ता लेने के लिए हर दरवाजे पे खटखटाना पड़ रहा है और ये खटाखट मॉडल बिल्कुल खटारा हो गया है। हालत ये है कि जहां एक और चांद तारे लाने की बात करते थे, वहां आज युवा सड़कों पर उतरा है। सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स विरोध में सड़कों पर है, उनको पेंशन मिल नहीं पा रही और राज्य 97,000 करोड़ के Congress MP Abhishek Manu Singhvi reacted to the incident of cash allegedly recovered from his Rajya Sabha seat, calling it humorous and suggesting the need for a new rule where MP's seats should be enclosed in a glass box with a lock and a key. Singhvi clarified that he was only in the house for a brief 3-minute period at 12:57 p.m. the previous day, after which he went to the canteen and then left for court. He expressed frustration that the issue was being politicized, saying that accusations and counter-accusations are tarnishing the reputation of the entire parliamentary system. मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले, उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रावी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन एक और बुरी बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट में या तो तार लगा दीजिए या सीट में बांध के बैठिए। सर, कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की राज्यसभा चेयरमैन से, ये भी कहा है कि जांच हर तरीके की जांच कराएं, इवन जेपीसी भी बैठाएं। मैं लेट मी फिनिश इन इंग्लिश आल्सो वेरी क्विकली। आई हर्ड ऑफ दिस फैंटास्टिक laughable story. If it was not serious about security lapses and entry into Rajya Sabha, it would be laughable. I started saying that possibly we should now have a barbed wire fencing around the entire seat or a glass enclosure which you can lock.